انسان کو اپنی ایفرٹ سے کامیابیاں کب ملتی ہیں؟ انسان کی ایفرٹ نظر آتی ہے اس کی زندگی کی لائن سے، کوئی لائن نہیں، اگر جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف جائیں تو آپ کو اپنی ایفرٹ کی وجہ سے زبردست جاب مل جائے گی. یہاں سے کوئی لائن سیٹرن کی طرف جاتی ہے تو آپ اپنا کوئی بزنس بنا لیتے ہیں، بڑا بزنس بناتے ہیں، آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. یعنی کہ یہاں سے بھی آپ کی جو ایک ذاتی قابلیت ہوتی ہے اس بیس پہ آپ اپنا کیریئر بناتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی سن لائن ہو، اس کے ساتھ یہ فش سائن بھی بنے ہو تو یہ فش سائن بے تحاشا آپ کو دولت دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں. اور زندگی کی لائن کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل آپ کو اولڈ ایج میں پراپرٹی بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، عزت، دولت، شہرت، روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کرے. اگر آپ کی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ٹرائی اینگل ہو تو یہ آپ کو اولڈ ایج میں بے تحاشا دولت دے گا. قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ٹرائی اینگل اس طریقے سے بنا ہو تو دیکھیے یہ ڈمروں کا سائن بن گیا. تو اگر ڈمروں کا سائن قسمت کی لائن کے ساتھ اور زندگی کی لائن کے ساتھ مل کے دو ٹرائی اینگل آپس میں جڑ جائیں تو یہ بھی آپ کو ارلی ایج میں ہی بے تحاشا دولت دیں گے، روپیہ پیسہ دیں گے. اور اس کے علاوہ اگر سن لائن کے ساتھ یوں اتنا بڑا فش سائن بنا ہو تو یہ فش بھی آپ کو بے تحاشا دولت دے گی، شہرت دے گی، دولت دے گی. اور قسمت کی لائن جو ہے اگر اوپر جا کے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو رہی ہے تو آپ کو 2 یا 3 جگہ سے انکم بھی آئے گی. اور جوپیٹر ماؤنٹ پہ اسکوائر کے سائن آپ کو بے تحاشا پراپرٹی دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، اور ایسا انسان زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے. اگر آپ کے پاس بڑی پاورفل قسم کی ہو قسمت کی لکیر، یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ. یہ مون ماؤنٹ سے اسٹارٹ لے اور پھر یہ گھوم کے ایسے جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف چلی جائے تو یہ وہ قسمت کی لکیر ہے جو آپ کو بیرون ملک سفر بھی کرواتی ہے. آپ باہر کے ملک سفر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں دے گا. اور یہیں سے بھی ایک لائن یہ سن ماؤنٹ کی طرف بھی جا رہی ہے تو یہ لائن ان کو نیم فیم دلوائے گی، پبلک ڈیلنگ والا کام کریں گے، پولیٹکس کریں، بزنس کریں، آن لائن کام کریں یا خود بیرون ملک چلے جائیں تو ہر صورت میں یہ سن لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی. اور یہ قسمت کی لائن بھی ان کو فورن سیٹلمنٹ میں بھی ہیلپ کرے گی، فورن ٹریول بھی کروائے گی. اور زندگی میں ایسے لوگ بے تحاشا دولت کماتے ہیں. سیٹرن ماؤنٹ پر کراس کا سائن تو آج تک کسی نے اچھا نہیں مانا. یہ کراس کا سائن ہمیشہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا، تنہائی کی طرف لے کے جائے گا، روپے پیسے کا نقصان کروا سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کروا سکتا ہے، آپ کے اندر ڈپریشن بڑھے گا، روپے پیسے کا نقصان ہوگا. اور اولڈ ایج میں 50 کے بعد اگر یہ کراس بنا ہوا ہے تو آپ کو صدقہ وغیرہ دیتے رہنا چاہیے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. میں نا اگر آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ ٹرائی اینگل بنے ہو تو ان کو بڑا مبارک مانا جاتا ہے. یہ ٹرائی اینگل آپ کو زندگی کی لائن پہ پراپرٹی دیتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بنتا ہے، یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بنتا ہے تو اس لمحے انسان کچھ نہ کچھ پراپرٹی ضرور بنائے گا. تو اس طرح ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن کے ساتھ بھی ان کے ہمیں ٹرائی اینگل بنتے نظر آ رہے ہیں. ایک ٹرائی اینگل یوں بنتا نظر آ رہا ہے، ایک ٹرائی اینگل یوں بنتا نظر آ رہا ہے. تو اگر ٹرائی اینگل اس طریقے سے بن رہے ہوں یا منی ٹرائی اینگل بن رہا ہو اس طریقے سے تو بھی آپ کے پاس بے تحاشا دولت آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے. اور قسمت کی لائن کے ساتھ چھوٹے جو ٹرائی اینگل ہوتے ہیں یہ بھی بزنس کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے، سڈن ویلتھ کے لحاظ سے ان کو بہت اچھا مانا گیا. اگر زندگی کی لائن آپ کی نیچے جا کے 2 شاخہ ہو رہی ہو، یہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، یوں اس طریقے سے 2 شاخہ ہو رہی ہو اور آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ بھی یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے اور یہاں سے بھی کچھ لائنیں ایسے قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ رہی ہوں تو یہ فورن سیٹلمنٹ کا بڑا پاورفل سائن ہے. 100% آپ بیرون ملک جائیں گے. اور اگر یہاں پہ فش سائن بھی بنا ہو مون ماؤنٹ پہ یا زندگی کی لائن میں ایسے فش سائن بن جائے، یہ فش سائن بھی آپ کو بیرون ملک سفر کروائے گا اور آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی. پاس قسمت کی لائن بڑی شاندار ہو، ایسے اوپر تک جا رہی ہو اور یہاں پہ پھر اس طریقے سے فش سائن سن ماؤنٹ پہ بڑا ہی خوبصورت فش سائن آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں. ابھی پورا مضبوط ان کے بہت طاقتور نہیں ہے، تھوڑا سا مدھم ہے
लेकिन ये फिश साइन जब ये डार्क हो जाएंगी लाइनें तो ये इनको बेतहाशा दौलत भी देगा, नेम फेम भी देगा, बुढ़ापे में इनको बहुत इज्जत मिलेगी। पॉलिटिक्स में जाएंगे ओल्ड एज में तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। सियासत में भी ये इनको नेम फेम मिलेगा, रुपए पैसे के लिहाज से, दौलत के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से, इज्जत और रिस्पेक्ट के लिहाज से ये फिश साइन इनको बहुत ज़्यादा इज्जत भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा और ये बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगा। किस्मत की लाइन शुरू में बड़ी चमकदार हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, इनके 40 साल की उम्र तक तो किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन रहेगी। यहाँ पे इंसान की एज 40 साल बन जाती है, लेकिन उसके बाद किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम होकर चल रही है। इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन 50 के बाद किस्मत की लाइन फिर बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा और अल्लाह ताला इनको ओल्ड एज में आसानियाँ देगा, किसी के आगे इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आपके पास किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो, लंबी हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, और यहीं से एक लाइन जैसे इस हाथ में नज़र आ रही है, ये किस्मत की लाइन के साथ टच होके ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये मून माउंट पर जब सफ़र की लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है तो ये कभी कभी आपकी बैरून मुल्क शादी भी करवा देती है और ये बाहर के मुल्क जाने का बड़ा पावरफुल साइन है। यहाँ पे आप शादी की लाइन देखें तो हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, तो जो भी ये एक फीमेल पाम है तो तकरीबन 14-15 या 18 साल की एज में कोई इनको अच्छा लगेगा, तो ये उस दिली वाबस्तगी की लाइन है, कोई आपको अच्छा लगता है। उसके बाद ये शादी की लाइन है, लेकिन शादी की लाइन के ऊपर एक हल्की सी लाइन मौजूद है। जब शादी की लाइन के ऊपर एक हल्की सी लाइन मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और आप दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से वो मोहब्बत, वो तवक्को मिल नहीं रही होती, आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आप सेकंड मैरिज का सोचते हैं। और अगर शादी की लाइन के ऊपर एक फिर हल्की सी लाइन भी मौजूद हो तो फिर आप शादी के बाद किसी के साथ मोहब्बत करें या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएं, तो ये शादी के बाद कोई अच्छा लगना, किसी के साथ मोहब्बत करने का ये बड़ा पावरफुल साइन होता है। आम तौर पर पामिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि ये शादी की लाइन के ऊपर ही आपने औलाद की लाइनों को देखने की, तो औलाद की लाइन एक शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। जो गहरी डार्क लाइन होती है बेटे की होती है और जो हल्की मध्यम लाइन होती है वो बेटी की होती है। लेकिन जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये होती है आपकी दिल की लकीर और ये होती है आपकी इधर से आती है आपकी दिमाग की लकीर। तो इसके बीच में यहाँ पर जो लाइनें बनती हैं, 2 या 3 या 4 लाइनें अगर यहाँ पर भी बन रही हैं, तो ये भी इंसान की औलाद का बताती हैं कि अल्लाह ताला अगर यहाँ पर गहरी लाइनें हैं, लंबी लाइनें हैं, 2 या 3 लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको 2 बेटे देगा और 7 छोटी लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको 2 बेटियाँ भी देगा। तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा अगर आपकी यहाँ पर लाइनें मौजूद हैं तो। अगर आपके पास बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन हो और उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन मौजूद हो, तो ये बता रही है कि शादी के बाद भी कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, किसी के साथ आपका रिलेशन बनेगा, कोई आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो छोटी लाइन होती है ये शादी का तो नहीं बताती, लेकिन शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, शादी के बाद किसी के साथ इंसान जो फ्रेंडशिप करता है, दोस्ती करता है, नाजायज़ ताल्लुक बनाते हैं, तो ये उसकी लाइन आप कह सकते हैं। देखिए, अगर आपकी शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो और हल्का-सा इसमें कर्व हो, नीचे की तरफ झुक रही हो, तो ऐसे लोग आम तौर पर लव मैरिज करते हैं। अगर शादी की लाइन बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो आम तौर पर अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। लेकिन शादी होने के बाद वो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़े मुखलिस होते हैं और ये भी तकरीबन आप समझ लें कि लव मैरिज के बराबर ही इस लाइन को भी समझा जाता है। लेकिन शादी की लाइन में किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए। अगर शादी की लाइन में कट आना शुरू हो जाएँ, जज़ीरे आना शुरू हो जाएँ, तो फिर ये शादी में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। अगर केटू माउंट पर शुरू में आपका यहाँ पे ये जज़ीरा बने, इस तरीके से जज़ीरा हो और फिर इसमें से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले, तो केटू माउंट पर जज़ीरा जो होता है वो बचपन में आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सेहत के मसले ऐसे बच्चे को हो सकते हैं, स्पेशली जब आपकी लाइफ लाइन पे भी इस तरीके से जज़ीरे बन रहे हो और केटू माउंट पर भी एक बड़ा जज़ीरा बन रहा हो,
तो बचपन में हेल्थ के इशू भी होते हैं और बचपन में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी आपको ज़िंदगी में ज़रूर देखनी पड़ती है। अगर ना दिमाग की लकीर आपकी दो शाखा हो, इतना बड़ा दो शाखा हो, ठीक है, तो ये बताती है कि ऐसे इंसान मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इंसान का एट ए टाइम दो कामों में दिमाग बड़ा तेज चलता है। ऐसे लोग ज़बरदस्त बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, दो दो जॉब कर लेंगे, दो दो बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस प्लस जॉब कर लेंगे। तो ये इंसान के इंतहाई इंटेलिजेंट होने का बताती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ कामों को एट ए टाइम शुरू करने की सलाहियत रखते हैं और फिर उनको पाया तकमील तक भी पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, अगर आपकी किस्मत की लाइन बड़ी कमज़ोर हो, वीक हो और फिर उस कमज़ोर किस्मत की लाइन पे इस तरफ से राहु लाइनों का भी हमला हो, तो जितनी ये राहु लाइनें किस्मत की लाइन को डैमेज करेंगी, अगर लड़की के हाथ में ये राहु लाइनें होंगी तो उसकी मैरिज में मसले बनेंगे। अगर मर्द के हाथ में ये राहु लाइनें होंगी तो उसका कैरियर में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आएंगे, बार बार जॉब ख़त्म हो जाएगी, बिजनेस में बार बार नुकसान होगा, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। और जहाँ पे आपकी किस्मत की लाइन मजबूत होती है वहाँ पे फिर आपकी जॉब भी ज़बरदस्त हो जाती है और आपका बिजनेस भी कामयाबी के साथ चल पड़ता है। देखिए, ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, ये आपकी दिमाग की लाइन चल रही है। आप अगर यहाँ पे इस तरीके से इसमें ये एक इस तरीके से जजीरा सा बने, तो ये जो दिमाग की लाइन पे एक जजीरा होता है, ये आपको सख्त डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। उस लम्हे कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन आपको मिलती है। और अगर दिमाग की लाइन के एंड पे जजीरा हो या किस्मत की लाइन के एंड पे जजीरा हो, तो ये इंसान का जो बुढ़ापा होता है उसके बारे में बताता है कि बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं होगा, ओल्ड एज में आपकी यादाश्त ख़त्म हो जाएगी, रुपए पैसे का नुकसान आपका हो सकता है और आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं और या आपका बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। कामयाब शादी की लाइन वो समझी जाएगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी हो। अगर शादी की लाइन बहुत छोटी हो तो वो शादी की लाइन आपकी कामयाब नहीं होती। बाज़ दफ़ा ना हथेली में छोटी छोटी लाइनें आपको नज़र आती हैं, तो वो छोटे छोटे रिलेशन होते हैं जो आपके वक्त के साथ टूट जाते हैं। बाज़ दफ़ा शादी की लाइन से पहले भी आपको हल्की एक या दो लाइन नज़र आएंगी या यहाँ पे एक दो छोटी लाइनें नज़र आएंगी, तो वो इस चीज़ का साइन होता है कि शादी से पहले कहीं पे आपकी बात चली हो, कोई आपको अच्छा लगा हो, किसी के साथ आपने यकतरफा मोहब्बत की हो। तो ये यकतरफा मोहब्बत या एक कमज़ोर रिलेशन की लाइनें होती हैं, वो रिलेशन जो अधूरा रहता है, जो रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो शादी की लाइन वही होगी जो लंबी होगी और ज़बरदस्त होगी, चमकदार लाइन होगी। देखें, अगर शादी की लाइन के नीचे दो लाइनें इस तरीके से ब्रेक हों, ये बिल्कुल बारीक लाइनें होती हैं, तो ये होती हैं मंगनी टूटने की। किसी के साथ आपने खामोश मोहब्बत की, यकतरफा मोहब्बत की ये लाइनें हो सकती हैं, मंगनी टूटने की लाइनें हो सकती हैं। यानी कि ये आपकी जो किसी के साथ भी जो आपका रिलेशन बनना होता है, ये रिलेशन आपका कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि वो रिलेशन आपका अधूरा रहता है। कंप्लीट रिलेशन कब बनेगा? जब आपकी ये लाइन गहरी होगी, लंबी होगी और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि मरकरी माउंट तक ये टोटल फैली हुई शादी की लकीर अगर होगी, तो यही आपकी कामयाब शादी की लाइन होगी। जो हल्की बारीक लाइनें होंगी ये आपकी रिलेशन की लाइनें होंगी, जो कि टूट जाने वाला रिलेशन होता है। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे
की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।